Hi friends, myself Ankit, welcome in the physics coach. Today we will continue our lecture related to Doppler effect and we will understand two important topics today. In the previous lecture I told you what is Doppler effect. So what is Doppler effect? It is the effect due to the change in the frequency received by the observer. But in today's lecture we will understand how the medium affect the velocity of sound and how the velocity of sound affect the apparent frequency. Clear? So in the previous lecture मैंने आपको बताया था f is equal to apparent frequency is equal to v plus minus vo v plus minus vs multiply fo. fo is the natural frequency of the source, vo is the object velocity or we can say that observer velocity, vs is the source velocity. what is v? v क्या है यहाँ पर? v is the speed of sound. Clear? And speed of sound depends on medium. So in this lecture we will understand how the velocity of sound will affect by the medium. अगर क्वेश्चन में आपको मीडियम की वेलोसिटी दी हुई है तो आपको स्पीड ऑफ साउंड कैसे लेना है, आई विल टेल यू. क्लियर? किसी कोई डाउट पिछले लेक्चर में प्लीज आस्क मी, आई विल स्टार्ट द लेक्चर इन अ few minutes. Okay, so just see, we will cover first topic, effect of medium on sound velocity. For example, this is my source. Okay, this is my observer. Source is moving towards the observer with a velocity. Let us suppose both are stationary. First we will consider a very simple case. Both are stationary. Of the source is emitting certain waves and this wave is moving with velocity v, and the medium can be air, it can be water, it can be kerosene, it can be any medium. Okay, let us suppose we are considering the medium is air. Sound moving in this direction from left to right in this direction, but the medium is moving in this direction. W is the speed of medium. Clear? And medium can be air, it can be water, it can be kerosene oil, it can be any medium. Clear? So let us suppose the air is moving from right to left and our sound wave which is emitting from the source is moving from left to right. So you need to take the velocity. यहाँ कितना लेना है, साउंड किस वेलोसिटी से मूव करेगा? v माइनस डब्लू. क्लियर? हमेशा याद रखना कि यहाँ जब आप क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे then you need to apply v minus w. Instead of writing v you need to write v minus w, क्योंकि अब जो वेलोसिटी है नेट वेलोसिटी क्या है साउंड की? v माइनस डब्लू. मान लीजिए हमारा जो मीडियम है एयर, इट इज स्टिल, इट इज नॉट मूविंग. इन दैट केस यू कैन टेक v. if the w is 0 then you can take directly v. Clear? Now if the medium is supporting the sound wave, मीडियम लेफ्ट टू राइट जा रहा है और साउंड वेव भी लेफ्ट टू राइट जा रही है, देन यू नीड टू टेक स्पीड ऑफ साउंड. कितना लेना है आपको? नेट स्पीड ऑफ साउंड कितना होगा? यू नीड टू टेक v प्लस डब्ल्यू. क्लियर? यहाँ तक किसी कोई डाउट? इज देयर एनी डाउट? ओके. देयर कैन बी वन मोर केस, लाइक if the sound is moving in certain angle. Okay, let's see here. If the sound is moving in this manner, okay, with certain angle theta with the direction of wave. Clear? So अब मुझे इतना बताइए, which velocity of medium will affect the velocity of sound? बताइए इसका कौन सा कंपोनेंट है मीडियम का? इट विल अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड. जस्ट टेल मी, कैन एनीबडी टेल मी?
just figure out. It has two component, w cos theta, another component w sin theta. Clear? W sin theta is acting perpendicularly and w cos theta is acting what? Horizontally. So this component will affect the velocity of sound, or we can say that horizontal component is responsible for the changing in the speed of sound. तो कितना लेंगे इस कंडीशन में? स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा? स्पीड ऑफ साउंड विल बी v प्लस w cos थीटा. तो क्वेश्चन में आपको जब आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दे, आपको प्रॉब्लम मीडियम की स्पीड दे, देन यू नीड टू बी कॉशियस कि आपको स्पीड ऑफ साउंड के लेना है v प्लस w cos थीटा, अगर आपको एंगल पे दिया हुआ है. क्लियर? मान लीजिए अगर ऐसा ना हो कि ऐसा है, ये ऐसे ना हो कि इफ इट इज एयर इज मूविंग इन दिस मैनर, थीटा ऐसे दिया हुआ है आपको, तो यहाँ कंपोनेंट ले लेना w cos थीटा. ये क्या हो गया? w वेक्टर तो आप लोगों ने पढ़ा होगा. तो इस कंडीशन में आपको देखो नेट वेलोसिटी क्या आएगी स्पीड ऑफ साउंड की? v माइनस w cos थीटा. देन यू नीड टू पुट द स्पीड ऑफ साउंड v माइनस w cos थीटा इन द प्रॉब्लम. ओके, किसी कोई डाउट यहाँ तक? सो द इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन इज हेयर, द मीडियम affect the speed of sound. If the speed of sound changes, apparent frequency also changes. You can see. Clear? Now see the first problem. Write down. So read the problem. In the problem it is saying that, read the problem carefully. Silent, okay? 1 or 2 minute problem को read करिए. Question is saying a source produce a sound of frequency 1120 Hz. जो दिया है आपको please note down and write. सोर्स का साउंड दिया, मतलब फ्रीक्वेंसी दिया है 1120 हर्ट्ज. इट्स द नेचुरल फ्रीक्वेंसी. सोर्स इज मूविंग विद वेलोसिटी. देखो सोर्स का वेलोसिटी दिया है, यानी वीएस दिया हुआ है. इट इज गिविंग 50 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? टुवार्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, इट मीन्स वीओ. ऑब्जर्वर क्या है? रेस्ट पर है. फाइंड द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर. तो सी हेयर सोर्स, दिस इज ऑब्जर्वर. सोर्स इज मूविंग टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर. इट मीन्स व्हाट? कि ऑब्जर्वर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को सुनेगा. अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को सुनेगा देन वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू वी अपॉन वी माइनस वी एस. ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि कैसे लेते हैं माइनस प्लस और कैसे फॉर्मूला आता है ड्राइव करना बताया था मैंने आपको. आई टेल यू ईच एंड एवरीथिंग. क्लियर? सो इन दिस लेक्चर आई एम जस्ट टेलिंग द फ्यू प्रॉब्लम्स. क्लियर? You will apply this formula. F निकालना है आपको. The F is the apparent frequency. Clear? F is the apparent frequency. V दिया हुआ आपको. V क्या है? Speed of sound. That is 330 मीटर पर सेकेंड. Clear? In air. Clear? 330 माइनस कितना दिया सोर्स का वेलोसिटी? 50 मल्टीप्लाई FO. FO is the frequency of, real frequency of source. कितना है? 1120. सो प्लीज सॉल्व दिस एंड टेल मी द आंसर. इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? नोट डाउन 1320 हर्ट्ज. देन यू आर सीइंग दैट कितना सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है? 1120 हर्ट्ज. लेकिन ऑब्जर्वर को कितना सुनाई दे रहा है? 1320. दिस इज द डॉपलर इफेक्ट. इन द डॉपलर इफेक्ट द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर इज डिफरेंट फ्रॉम द frequency emitted by the source. Clear? Note down the problem and the solution. So read the problem too carefully. In this problem it is saying that, please देखिए बच्चों, क्वेश्चन जब भी आपको दिया हो आसानी 2 बार 3 बार रीड करिए, और जब तक आपको क्वेश्चन समझ में आए, विदाउट एकदम ऐसा नहीं कि मिरेकल हो जाए, ऐसा नहीं होगा. अभी आप नैली सीख रहे हैं. यू आर न्यूली बॉर्न बेबी, यू आर लर्निंग दिस, सो इट विल टेक टाइम. आफ्टर प्रैक्टिस 5 or 10 प्रॉब्लम्स यू विल बी एक्सपर्ट ऑफ डॉपलर इफेक्ट. क्लियर? सो रीड दिस प्रॉब्लम. अ सोर्स प्रोड्यूसिंग अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 900 हर्ट्ज. तो हमारे पास एक सोर्स है हमारा. दिस इज सोर्स, दिस इज रिसीवर, और वी कैन से दैट ऑब्जर्वर. Clear? A source producing a sound of frequency 900 Hz. It's the real frequency of source.
It is moving with a speed 30 meter per second. So it is the speed of what? It is the speed of source. Clear? Towards an observer which is moving away from the source. Here source it will be. Clear? It is source. Towards an observer which is moving away from the source with the speed 10 meter per second. Find the frequency received by the receiver. Clear? So in the problem, like it is saying that a source is having velocity vs दिया हुआ है, ऑब्जर्वर के टुवार्ड्स जा रहा है, ठीक है, क्लियर, और ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है. तो देखिए ध्यान से देखिए, हमको एक एक्सप्रेशन पता है, F इज इक्वल टू वी प्लस माइनस वी ओ डिवाइड बाई वी प्लस माइनस वी एस मल्टीप्लाई एफ ओ. एफ ओ इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स. क्लियर? अब ध्यान से देखिए कि क्या प्लस लेना है क्या माइनस देखना है. अब देखो हम ऑब्जेक्ट के ऑब्जर्वर के बेस पर हम साइन देखेंगे. तो ध्यान से देखिए, ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है. अगर ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जाएगा तो उसको कम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा. कम सुनाई देने के लिए, यानी कम फ्रीक्वेंसी सुनाई देने का मतलब क्या है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी उसको कम सुनाई देगी. तो यहाँ क्या लेना है, माइनस. सोर्स, अब विद रेस्पेक्ट टू सोर्स देखिए, प्लस लेना माइनस लेना. ध्यान से देखिए कि आप ये देखा करिए कि जो एफ है, एफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑब्जर्वर के मूव करने से, सोर्स के मूव करने से. तो प्लस माइनस साइन आप उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा. क्लियर? नाउ सी, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. इफ सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, सी ऑब्जर्वर विल लिसन मोर फ्रीक्वेंसी. इफ द लिसन मोर फ्रीक्वेंसी मीन्स एफ इज मोर. एफ कैन बी मोर ओनली व्हेन देयर इज अ नेगेटिव साइन इन द डिनोमिनेटर. जब नीचे वाला कम होगा देन टॉप वाला बढ़ेगा. क्लियर? तो विद रेस्पेक्ट टू द सोर्स इट विल बी नेगेटिव, विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर इट विल बी नेगेटिव. सो सिंपल, जस्ट पुट द वैल्यूज. v इज 330 माइनस वी ओ. वी ओ कितना दिया आपको, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी. ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दी है 10. क्लियर? डिवाइड बाई 330 माइनस वी एस. वी एस कितना दिया आपको, 30 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? मल्टीप्लाई एफ ओ. एफ ओ कितना दिया है, फ्रीक्वेंसी कितनी, 900 हर्ट्ज. तो कितना फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर, और वी कैन सेट रिसीवर. जस्ट सॉल्व इट, यू विल गेट 960 हर्ट्ज. 960 हर्ट्ज. सो द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द रिसीवर इज हायर देन द फ्रीक्वेंसी emitted by the source. This is the Doppler effect. Clear? So ध्यान से देखिए next problem. It's a very important problem. You never see this problem in your notebook. You will not find. The question is saying that an observer is moving as shown in figure. This is the observer. Okay, this is the observer. This is the observer, and find the speed of the observer so that he received equal frequency from both the source. So try to see, these are the two sources which are stationary. Let us suppose this is one mic, this is another mic of JBL company or any company. Clear? आपने दो माइक लिए, डैग लिए, यहाँ रख दिए, बीच में आप खड़े हो गए, आप भाग रहे हो लेफ्ट टू राइट. तो आप इस क्वेश्चन में क्या कहा है, व्हाट क्वेश्चन सेट, फाइंड द स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर सो डैट. स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर बताइए क्या होनी चाहिए, सो डैट ही रिसीव्ड मीन्स ही मतलब मीन्स ऑब्जर्वर रिसीव्ड इक्वल फ्रीक्वेंसी फ्रॉम बोथ दी सोर्स. मीन्स let us suppose this observer is receiving frequency from this source to be f1, and from this source this is observer is receiving the frequency f2. So in the problem it is saying that f1 is equal to f2, means he is receiving equal frequency from both the source. Now we need to find out the velocity of source at which it should move. Clear? तो just forget this portion. अभी इस सोर्स को भूल जाइए. f1 देखिए, f1 क्या होगा, ट्राई टू सी विद रेस्पेक्ट टू दिस सोर्स s1, दिस ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम दिस सोर्स, सो ही विल द ऑब्जर्वर विल लिसन लेस फ्रीक्वेंसी फ्रॉम दिस सोर्स. सो f1 विल बी v अपॉन v प्लस
इट विल बी व्हाट, वी एस तो ज़ीरो होगा, लेस मीन्स ऊपर क्या आएगा माइनस, लेट अस सपोज इसको वी डैश मान लीजिए, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज, क्लियर, इज इक्वल टू, नाउ दिस ऑब्जर्वर, because why I am taking that v dash, because v is the speed of sound, otherwise you will be confused. This observer is moving towards this source, so with respect to this source, observer is coming closer to this source, so the observer will listen more frequency, so f2 will be v plus v dash divided by v. कुछ नहीं करा मैंने, सिंपल ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, एफ इज इक्वल टू वी प्लस माइनस वी ओ, वी प्लस माइनस वी एस मल्टीप्लाई एफ ओ, क्लियर, एफ ओ कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज एफ ओ कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी अलग है 500, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इधर नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी है 400, क्लियर, समझ आ गया, वी ओ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी और वी कैन सेट ऑब्जर्वर वेलोसिटी दैट आई कंसीडर टू बी वी डैश, क्लियर, बहुत सिंपल है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। आपको क्या निकालना है, देखिए आपको निकालना है v, आपको पता है v स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है 330 मीटर पर सेकेंड, सॉल्व करिए, इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप, यू नीड टू कैलकुलेट v डैश, क्लियर, यू नीड टू कैलकुलेट v डैश एंड आई एम टेलिंग यू द आंसर, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल, देखिए v से b कैंसिल हुआ, 20 से 20 कैंसिल हुए, यहाँ कितना आएगा 5v माइनस 5v डैश इज इक्वल टू 4v प्लस 4v डैश, क्लियर, सबको दिख रहा है, इज इट विजिबल टू एवरीवन, ओके, नाउ 5v माइनस 4v इट इज v, दिस इज 9v डैश, सो v डैश इज इक्वल टू हाउ मच, v डिवाइड बाई 9, सो 330 डिवाइड बाई 9, so it will be how much, just solve it, 36.3 meter per second. So this, at this velocity our observer should move so that he will receive equal frequency, clear, is there any doubt to anyone, you can ask me in the comment box if you find. Just see the next problem, it is very important problem, and please read the problem for 2 minutes, then if you are able to solve it please try, or otherwise I will tell you. A train and a bus approaching a railway crossing as shown in figure, a train blow a horn of frequency, how much frequency, 900 hertz, clear, so this much is frequency that is released by the, this is natural frequency, clear, find the frequency received by the driver of bus, how much frequency a driver who is driving this bus is receiving from the frequency. देखिए ये रेलवे क्रॉसिंग है, आप लोगों ने सुना हुआ, एप्लीकेशन ही बता रहा हूँ मैं आपको, कि रेलवे ब्रिज आता है तो क्रॉसिंग पर क्या होता है, बस रुक जाती है, ट्रेन ऐसे आ रही है, ट्रेन ऐसे आ रही है, देखिए ट्रेन ऐसे आ रही है और बस यूँ आ रही है, क्लियर, तो बस इज मूविंग टुवर्ड्स द रेलवे क्रॉसिंग मीन्स दिस इज द रेलवे क्रॉसिंग, ये रेलवे फाटक आपने सुना होगा, यू, सो the bus is coming closer to the railway crossing, so here what frequency is received by the bus driver from the train, this is the question, just see here, this is the velocity 50 meter per second, बस का velocity दिया है आपको क्या क्वेश्चन में, just note down, it is 40 meter per second, 40 meter per second, just see the question very carefully, here train is moving with 50 meter per second and 40 meter per second, will there be a Doppler effect in this manner, no, because 50 meter is in this line, 40 meter is in this line, what I told you yesterday in the previous lecture, किसी ने नहीं देखा, please watch this lecture, watch the lecture carefully and try to understand the Doppler effect concept first, clear, so this train, in order to for the Doppler effect, there should be the line joining, Doppler effect occurs in between the line joining the source and the what, the both source and observer are should be on the same line, clear, so we will make source and the observer on the same line, we will make, this is that, clear,
we make. Now velocity, we will consider the velocity of this source. I can take alpha, this to be beta. Clear? This is alpha and this is beta. Just try to understand. I am making the diagram here. This is beta, this is alpha, and this is the velocity of 50 meter per second of source, and this is the observer 40 meter per second. Clear? I need to take the component of the velocity of train where along this line. Same, I need to consider the velocity of bus along this line. That will be 40 cos beta and it will be 50 cos alpha. Why I take? Because for Doppler effect to happen, there should be the what? Velocities, or we can say that there should the observer and the or we can say that source is on the same line. Line joining the observer should be same, or we can say velocity is along the line joining the source and the observer. देखिए इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इट विल अफेक्ट ओनली इसका वर्टिकल कंपोनेंट. देखिए ये होगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो ये होगा. वर्टिकल कंपोनेंट विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी चेंज इन द फ्रीक्वेंसी. क्लियर? सो इट्स वेरी वेरी इजी. देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका जो सोर्स है इधर मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर भी इधर मूव कर रहा है. सो इट्स अ केस व्हेन बोथ सोर्स एंड द ऑब्जर्वर आर मूविंग. क्लियर? किसी कोई डाउट यहाँ तक? अल्फा you can easily calculate what is 50, what is the velocity of what source. You can easily calculate Vs 50 cos alpha. What is the object velocity? 40 cos beta. देखिए cos beta cos alpha बहुत आसान है. This is 5, ये 5 दिया, ये this is 3, sorry, this is 3 meter, this is 4 meter and this is 5 meter. क्लियर? समझ आ गया? तो cos alpha is very very easy. cos alpha is base upon hypotenuse. what is base? देखिए ये 90 हो गया. बेस क्या होगा? ये होगा हमारा बेस. हाइपोटेनस ये हो गया, इट इज 3/5. इन द सेम वे cos बीटा कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस. दिस इज बेस. क्लियर? एंड दिस इज हाइपोटेनस. दिस इज 4/5. तो यहाँ से आप Vs Vo निकाल लेंगे. इट इज़ वेरी वेरी इजी. नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल टू एपरेंट फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द रिसीवर इज इक्वल टू V प्लस माइनस Vo. V प्लस माइनस, अब देखिए प्लस माइनस कैसे लेना, आई विल टेल यू. FO. देखिए यहाँ देखिए कि आपका जो ऑब्जर्वर है, रिसीवर है, ध्यान से सुनिए. देखिए अगर आप इसको ढंग से नहीं समझेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है यू विल नॉट अंडरस्टैंड. बी केयरफुली, प्लीज़ फोकस कि हमारा जो सोर्स है और ऑब्जर्वर, इसको देखिए ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है तो इसको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, ज़्यादा एपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी. क्लियर? ज़्यादा सुनाई देने का मतलब क्या है? न्यूमरेटर में ज़्यादा आना चाहिए. क्लियर? सोर्स कहाँ जा रहा है मेरा? ऑब्जर्वर के पास जा रहा है तो क्या होगा? ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी ऑब्जर्वर को. एफ की वैल्यू ज़्यादा होगी विद रेस्पेक्ट टू सोर्स. नीचे क्या आना चाहिए? माइनस. वेरी इजी. वीओ निकल गया, वीएस निकल गया, एफओ दिया है क्वेश्चन में. व्हाट इज एफओ? एफओ क्या दिया है आपको? 900 हर्ट्ज. वेरी इजी प्रॉब्लम, यू कैन इजीली सॉल्व. व्हाट इज द एफ? एफ ही पूछा है आपको. दिस एफ इज रिसीव्ड बाय द बस ड्राइवर. अब देखिए ध्यान से देखिए, ट्रेन अभी यहाँ पर है, बस यहाँ है, कुछ देर बस आगे जाएगी, ट्रेन थोड़ा आगे जाएगी. तो देखिए सेपरेशन क्या है? इट इज़ चेंजिंग. यहाँ सेपरेशन क्या है? ये है. फिर आगे जाएंगे सेपरेशन चेंज हो रहा है. तो देखिए ध्यान से देखिए, व्हेन देयर इज अ सेपरेशन चेंज इन बिटवीन सोर्स एंड द व्हाट? observer, then Doppler effect happen. Due to the change in separation between the source and the observer, then only Doppler effect happens. Otherwise you will not find any Doppler effect. Clear? समझ आ गया आपको? And always remember, अगर आपका source ये observer है, this is source and this is observer, always take the velocity component is along the line joining the source and the observer.
clear, always take, then only Doppler effect will happen. clear, समझ आ गया आपको? ऐसा नहीं कि मतलब सोर्स का कुछ कंपोनेंट वर्टिकल है आप उसको भी ले रहे हैं, यू विल नॉट कंसिडर दैट. clear? okay, this is the last question of the this lecture. Read this problem very carefully. In this problem it is saying that a source producing a sound of frequency 2800 hertz, so it's a real frequency of source, is moving with speed 50 meter per second. clear? Inside the water, find the frequency received by the floating detector. तो remember, source is moving, floating detector. ध्यान रखिए ये floating detector है. याद रखना फ्लोट, कोई चीज़ फ्लोट कब करती है? जब उसका वेट और बाइंड फोर्स इक्वल हो जाते हैं. क्लियर? दिस फ्लोटिंग डिटेक्टर इज मूविंग विद द रिवर वेलोसिटी. ये पानी है, ये रिवर है, रिवर, एंड 5 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ साउंड. देखिए याद रखना, साउंड का जो स्पीड है स्टिल वाटर में कितना दिया है? 1445. मीन स्टिल वाटर मीन्स देर इज नो इफेक्ट ऑफ मीडियम. actual velocity of sound it is given. clear? that is कितना दिया हुआ है? 1445. clear? 5 मीटर पर सेकेंड इज द रिवर वाटर वेलोसिटी, स्पीड ऑफ वाटर की वेलोसिटी दी हुई है, मीडियम की वेलोसिटी, इट्स अ मीडियम वेलोसिटी एंड दिस डिटेक्टर इज मूविंग विथ मीडियम. इट मीन्स व्हाट? ये जो डिटेक्टर है इसकी भी वेलोसिटी क्या होगी? 5 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? इट इज़ फ्लोटिंग अलॉन्ग द रिवर एंड द सोर्स इज मूविंग टुवार्ड्स द डिटेक्टर विद अ स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? इज इट क्लियर? देन बोथ आर मूविंग. वी विल अप्लाई द फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू वी प्लस माइनस वी यू, वी प्लस माइनस वी एस. आई एम अप्लाइंग ओनली वन फॉर्मूला. आपने देखा हो अभी तक, आई एम नॉट यूजिंग एनी मोर फॉर्मूलाज, आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला ओनली एंड आई एम अप्लाइंग द कंडीशन ओनली. तो सी, वी विल टेक द अफेक्टिव वेलोसिटी. वी कैन से इफेक्टिव, वी विल कैलकुलेट फर्स्ट इफेक्टिव साउंड वेलोसिटी. क्लियर? इफेक्टिव साउंड वेलोसिटी दैट इज, देखिए साउंड मेरा कितना है? 1445. इट इज़ द विदाउट मीडियम. लेकिन मीडियम क्या है? जिस डायरेक्शन में साउंड है उसी डायरेक्शन में क्या है? मेरा मीडियम मूव कर रहा है. देन मीडियम विल सपोर्ट द स्पीड ऑफ साउंड. तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी? इफेक्टिव कितना हो जाएगा? 1445 प्लस 5. वेरी इजी, अप्लाई करिए. अब देखिए सोर्स डिटेक्टर ध्यान रखिए, डिटेक्टर क्या कर रहा है? इट इज़ अ रिसीवर और वी कैन से दैट ऑब्जर्वर. This observer is moving away from the source. clear? So it will listen less frequency. It means आपको क्या लेना टॉप में? माइनस. ये कम होगा तो ये कम होगा. F पर इफेक्ट देखा करिए, F पर क्या इफेक्ट पड़ेगा VO और VS के मूव करने से. क्लियर? अब देखिए सोर्स ऑब्जर्वर के पास जा रहा है तो ऑब्जर्वर को क्या है? ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, यानी F बढ़ेगा सोर्स के रेस्पेक्ट में. इट मीन्स नीचे क्या लेना है? माइनस. लगा दीजिए इक्वेशन में, फॉर्मूले में लगा दीजिए. v क्या है आपका? 14. ऐड करिए इसको, कितना आएगा? 05 1450. क्लियर? माइनस vo कितना दिया है? 50. क्लियर? अपॉन v 1450 प्लस माइनस vs कितना दिया है? सोर्स का वेलोसिटी 50, ऑब्जेक्ट का दिया हुआ है 5. आई एम सॉरी, इट इज़ 5. clear? because the floating detector which is float with the river water. clear? multiply FO is the real frequency of source, that is 2800. clear? so what is F को निकालिए, कितना आएगा? it is what? you will calculate, कितना आएगा? just calculate, I am telling you the answer, 2890 hertz. so you are seeing that the frequency is 2890 hertz, which is different from the frequency of source. clear? so if you like this lecture, if you understand good things from this lecture,
Please share to your friends and please subscribe our channel and ask your queries in the comment section and the R group. Clear? Because this is a very important concept that I am telling you today, and after learning this you will not face any problem while solving the Doppler effect. Clear? कंफर्म है जेई मेंस हुआ आपका, IIT जेई हुआ, इससे क्वेश्चन आना ही आना है. So revise the lecture again and again and try to solve as many as problem. जितना प्रॉब्लम आपको सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्या वो कंसेप्ट क्लियर होगा. क्लियर? सो वंस अगेन थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट.